الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اہلا وسہلا ومرحبا بکم. ہمارے نئے سیمسٹر میں آپ کو خوش آمدید، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کی تعداد بڑھی ہوگی، کم نہیں ہوئی ہوگی. ایسا ہے نا کہ کم ہوگی، بڑھنی تو نہیں ہے خیر، لیکن یہ ہے کہ کم نہ ہو تو یہ بڑی اچھی بات ہو گئی. اور اب آپ اس سیمسٹر میں آپ کو کیا کرنا ہے، آنا ہے، کیونکہ نقصان تو بہت ہو گیا نا، بہت زیادہ نقصان ہو گیا. کلاسز کیا ہمارا اب سیمسٹر بھی چھوٹا سا ہو گیا. جتنا بھی کور کرنا چاہیں تو شاید کچھ ہو اور کچھ نہ بھی ہو، اور پھر بھی کوئی بھروسہ نہیں کہ اگلے ہفتے ہم جب کبھی صبح اٹھیں تو پتہ چلے کلاسز آن لائن ہو چکی ہیں. یہ تو ہاں بالکل اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن پھر بھی پتہ نہیں چلتا، کسی ٹائم کچھ بھی ہو جاتا ہے. تو جو ٹائم آپ کو مل رہا ہے نا، اس کو آپ غنیمت جانیں، اس پہ توجہ دیں اور کوشش کریں سیکھنے کی. پہلا سیمسٹر آپ کا، میرے خیال میں آپ کا یونیورسٹی میں پہلا سیمسٹر تھا، تو کم از کم آپ نے اس شعبے میں تو پہلا تھا اور اچھا گزرا ہوگا انشاءاللہ تعالی. امید ہے اب آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی کہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، ٹائم پاس کرنا ہے. امید ہے کہ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ہم نے پچھلے سیمسٹر میں جو پڑھا ہے نا، سر عرفان کی کلاس لے لی آپ نے؟ کیا کہاں سے شروع کیا آپ نے؟ وہاں سے صحیح. تو وہ آپ کو پڑھائیں گے پھر سے نحو، وہ پھر سے آپ کو نحو پڑھائیں گے. اصل میں چونکہ وہ جو آپ کے دوسرے ہیں نا اسٹوڈنٹس آنرز والے، وہ شروع سے پڑھ رہے ہوتے ہیں عربی ہر سال، تو وہ 4 کورس ایکسٹرا پڑھ چکے ہیں، اب بھی پڑھ چکے ہیں نا، کم از کم بھی عربی کے صرف، باقی کی چھوڑ کر. تو اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ کورس سی سی کا رکھا گیا تھا، اور سر عارف ثاقب صاحب ہی نے رکھا تھا. یہ انہوں نے ڈیزائن کیا تھا کہ یہ جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں نا، تو یہ ان کے لیے عربی مطلب کورس 2 کم ہو جاتے ہیں. فائنل ایئر میں پھر ایک ساتھ آ جاتے ہیں تو مشکل ہوتی ہے. لیکن میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ فائنل ایئر میں جب پریویس والے آتے ہیں، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ پریویس والے کا رزلٹ اچھا ہوتا ہے ان سے. میرا جب سے میں فائنل پڑھا رہا ہوں ایسا ہی. شاید یہ ان کی ہمت ابھی نئی ہوتی ہے، وہ ہمت ہار کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے، یا پھر اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. خیر، تو امید کرتا ہوں کہ ابھی یہ 2 کورس آپ کے لیے عربی سیکھنے کے لیے کافی ہوں یا نہ ہوں، کم از کم یہ ہے کہ ان سے بہتر آپ آ جائیں گے، بہتر پوزیشن پر آ جائیں گے. ابھی چونکہ نحو کے دونوں کو لے کر چلیں تو کوئی فائدہ نہیں، وہ بھی پڑھا رہے ہوں اور میں بھی وہی چیزیں پڑھاؤں تو کوئی فائدہ نہیں. نحو کا میرا طریقہ اگرچہ بالکل مختلف ہے تمام اساتذہ سے، اور اگر یہ چیزیں بنیادی چیزیں آئیں گی آپ کو تو فائنل ایئر میں آپ کو پریشانی ہوگی نہیں انشاءاللہ. جو سب سے زیادہ کمزوری ہے نا ہمارے اسٹوڈنٹس کی، نحو کی تو پھر بھی ہم کچھ نہ کچھ کھینچ تان کے کچھ کر دیتے ہیں، وہ صرف کی رہ جاتی ہے. صرف کا مطلب آپ کو سمجھایا تھا نا کہ ایک لفظ کو دیکھنا الگ الگ، تو ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا. وہ خاص طور پر فعل تو بالکل نہیں. تو فعل جب سمجھ میں نہیں آتا تو پھر وہ رٹ لیتے ہیں، پھر کہ فعل مضارع کا بھی پتہ چل رہا ہوگا، کبھی نہیں چل رہا ہوتا، کبھی ماضی اور مضارع مکس ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو پھر رٹنے ہوتے ہیں. کچھ آ جاتے ہیں، کچھ رٹتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہتر موقع دیا ہے، تو آپ اس کو کوشش کریں کور کرنے کی. ہم نے پچھلے سیمسٹر میں جو چیزیں پڑھی نا، میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا نا کہ وہ چیزیں ساری آپ سے مطلوب ہے، بھولنا نہیں کسی کو بھی، کیونکہ یہ اگلے سیمسٹر میں پھر سے یہ ساری چیزیں کام آئیں گی، تاکہ پھر بار بار آپ کو یاد نہ کرانا پڑے. وہ چیزیں یاد ہیں نا آپ کو؟ کیا کیا چیزیں پڑھی تھیں آپ نے؟ وہ ضمیریں پڑھی آپ نے، وہ گردانیں کچھ پڑھی. گردانیں رٹنا مطلب نہیں ہے، اصل میں وہ آپ کو یہ پہچان کرانا مطلب ہے کہ یہ فعل ماضی ہے، اس کا معنی یہ ہوگا، یہ مبنی ہوتا ہے، یہ مبنی ہوتا ہے، یہ تو اگلے سیمسٹر میں پڑھیں گے. ابھی پہچان تو ہو جائے نا آپ کو. اور مبنی مورب بھی تو پڑھا ہوگا آپ نے، یہ پڑھ رہے ہیں. سر عرفان نے بتایا مبنی مورب کا، کچھ میں نے بھی بتایا ہوگا شاید، نام تو بتایا ہوگا، نام بھی نہیں بتایا.
चलें, मबनी का मतलब ये होता है कि उसका लफ्ज़ के आखिर की जो हरकत है तब्दील होती रहती है ना, वो मबनी की तब्दील नहीं होती, किसी वजह से नहीं होती। यानी सब्जेक्टिव होता है तो हमारे यहाँ अरबी में उसके ऊपर पेश आता है, कोई लफ्ज़ ऑब्जेक्टिव बनता है तो फिर ज़बर आता है। तो अब जो सब्जेक्टिव भी होगा तो तब भी अगर ज़बर है तो ज़बर रहेगी, उसके ऊपर वो चेंजिंग नहीं आती, तो वो मबनी होता है। तो अब आपको गर्दान या ज़मीरें रटे कि आपको ये समझ में आ जाए कि ये जो हमने कहा ना तदरिबो, तदरिबो, तो आप इसका कोई फ़ाइल सब्जेक्ट तलाश ना कर रहे हो, क्योंकि हम कहते हैं ना कि फ़ेल के बाद फ़ाइल आता है ना, ऐसा सब्जेक्ट आता है ना। तो आप कहीं ऐसा ना हो कि वो तलाश कर रहे हो कि वो कौन है, तदरिबो को माना तुम मारते हो, तो आप आगे तलाश कर रहे हो, तो नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, हमेशा छुपा होगा फाइल और वो ज़मीर ही होगी। तो ये बताना मतलब है आपका, ताकि आपके लिए आपकी जो अरबी की ज़िंदगी है ना वो आसान हो जाए, असल मतलब ये है। लेकिन जब हमने दाराबा कहा तो फिर आप देखें कि आगे शायद कोई आ रहा होगा, फिर नसारा हमने कहा तो कोई सब्जेक्ट आगे आ रहा होगा, या फिर पीछे है तो उसको देखें। यानी ये लफ्ज़ों के बारे में, उनके आगे पीछे लफ्ज़ों का जोड़ तोड़, ये चीज़ तो यही, ग्रामर तो यही है ना, तो इसको आपको समझाना मतलब है। तो अब जो पहली क्लास हमारी जो पिछले सेमेस्टर में शुरू में हमने बताया था, शुरू में कि मुजारे जो है ना उसके शुरू में क्या आती है, ये आता है, ऐसा है, और फिर ये आता है, फिर ते आता है, फिर अलिफ आता है, और फिर नून आता है। और अलिफ जब आता है तो वो क्या होता है, मुतकल्लिम होता है। अमर भी आता है, अमर में फिर मुजारे नहीं होता, फिर उसका माना चेंज हो जाता है, मुतकल्लिम होता है। और फिर हमने आगे चलकर देखा कि हमने कहा इज्तानाबा, आपने याद किया था ना, तो फिर अलिफ आ गया था इधर, तो फिर आपको यानी ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि अलिफ आप ही ने तो कहा था कि वो मुतकल्लिम में आता है, तो फिर यहाँ पर भी आ गया, फिर माजी में भी आ गया। माजी में नहीं आता था, सुलासी मुजर्रद में तो माजी में अलिफ नहीं आता, मज़ीद फी में आ जाता है। तो ये सारी जो माजी की और मुजारे की जो कंडीशनें हैं, उसकी सूरतें हैं, वो आपको ठीक तरीके से उस पर गौर भी करना है, याद भी करना है, वो निकालना भी है। असल में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जो हमने आखिरी क्लास में हम देख रहे थे ना, वो प्रैक्टिस ही असल में अहम चीज़ है। क्योंकि आप ये रट लेंगे, मुझे पता है फिर से रट लेंगे। अगर आप टेबल याद कर लें, रट लें, और आपको मैथ की प्रैक्टिस ना हो तो उस टेबल के याद करने का कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ ना, ऐसा है ना, कोई फ़ायदा नहीं। हम टेबल क्यों याद करवाते हैं बच्चों को, कि जब मैथ का मसला हल करने बैठ जाए ना वो, तो उनके लिए बहुत आसानी हो जाए, चीज़ समझ में आ जाए, वो हिसाब किताब की तरफ फिर कर न रहे हो। तो यहाँ पर भी ऐसी ही बात है, हम ये गर्दान असल में याद इसलिए करवाते हैं, इसको याद करवाते हैं, उसको रटवाते हैं, लेकिन असल मतलब वो समझना है। तो उसकी प्रैक्टिस हम कुरान शरीफ से फिर करेंगे और करते रहेंगे, या फिर किसी किताब से, आपके पास एक किताब भी है उसमें लिखी हुई है, मैंने आपको बताया था इनशाउल अरबिया उसका नाम है। लेकिन जो हमने पिछली क्लास जहाँ पे ख़त्म की है ना, और वो था सुलासी मज़ीद फ़ी। सुलासी मज़ीद फ़ी के पहचान बहुत आसान है ना। और आपको मैंने सुलासी मज़ीद फ़ी की क्या क्या चीज़ें याद करवाई हैं, कौन कौन से बाब याद कर किए हैं, ज़रा आप मुझे बताएं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और सुलासी मज़ीद फ़ी में सबसे पहले क्या याद किया आपने, कौन सा बाब, बाब इफ़ाल, इफ़ाल और इफ्तिआल, ये अलिफ वाला है, ऐसे है ना। और नहीं, मुफ़ाअला, मुफ़ाअला और तफ़ईल और बाब इफ्तिआल मैंने ऊपर रख दिया था। ये है मुफ़ाअला और तफ़ाउल है,
तफाउल, ठीक है ना, तफाउल, तफील भी लिख दिया। और इफ़इलाल, और अभी 1 2 3 4 5 6 इन्फिआल, और इस्तिफ़ाल। मेरे ख्याल में यही होंगे बस। इस्तिफ़ाल, ये वो बाब हैं जो आपने इनके माजी भी याद कर लिए, और क्या याद किए थे, मुजारे भी याद कर लिया था। हाँ, सब सगीर में क्या क्या चीजें याद की हैं आपने, माजी, मुजारे, और मस्दर। मस्दर यही है उन सब के, मस्दर सारे यही हैं, मस्दर ही से नाम है ये बाब। ये मस्दर का वजन यही है, इनका जो नाम बना है ना ये मस्दर से है, इसलिए ये बाब इनको पहचानना इसलिए आसान है। ये जो मस्दर है ना उन सब के, वो उनका वजन यही है। अच्छा, और माजी, मुजारे, मस्दर, फिर इसमें फाइल, और इसमें मफूल, और मजहूल मारूफ भी थे ना, और मफूल के बाद फिर अम्र था, और नहीं, ज़र्फ भी है, नहीं था, नहीं था क्या, नहीं। अच्छा, हाँ, नहीं, इसमें नहीं था, इसलिए नहीं था कि जो मुजारे है ना, हमने ये कहा था कि मुजारे के शुरू में हम ला लगाते हैं तो नहीं बनता है, तो इसलिए उसकी फिलहाल जरूरत नहीं, उसकी हमने कहा था कि उसकी फिलहाल जरूरत नहीं। अब आप उसको कंप्लीट कर लेंगे, अब उनको आप कंप्लीट कर लेंगे। यानी माजी, आपने बीच में हमने चीज जो छुड़वा दी थी आपसे, वो इसमें मफूल के बाद लम के साथ, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहां से शुरू करूं इफ़ाल का, आपने कहा इसका बाब हमने अकरमा पढ़ा था, अकरमा युकरिमु इकराम, और इसमें फाइल है मुकरिमुन, और इसका माजी का मजहूल क्या है, उकरिमा, और मुजारे का मजहूल युकरमु, और मफूल क्या है, मुकरमुन। मुकरिमुन इसमें फाइल इज्जत करने वाला, और मफूल क्या है, मुकरमुन इज्जत किया हुआ, जिसकी इज्जत की जाए, मुकरमुन। अच्छा, अब उसके बाद फिर हमने कहा अक्रिम, तो बीच में हमने लम वाली चीजें छोड़ दी। लम युकरम वो फेल मुजारे है, लम लगाया हमने, फिर मजहूल लम युकरम, फिर नहीं हमने बनाया था कि वो नहीं इज्जत करता, ला युकरिमो, और फिर मजहूल ला युकरमो, और फिर लन लगाया लन युकरिमा, हर किस वो इज्जत नहीं करेगा, और मजहूल। तो बीच में 3-4 लफ्ज हमने छोड़ दिए थे, 3-4 नहीं में, हाँ नहीं लगता, सुलासी मुजर्रद में पढ़ा था, यहाँ पे छोड़ दिया था, मजीद फी में छोड़ दिया था हमने। हाँ, प्रैक्टिस भी नहीं हुई थी क्योंकि वो आखिरी टाइम में हुआ ना ये। हाँ, अभी हमने ये करना, अभी हमें मजीद खास तौर पर जिस पे हमें फोकस करना है वो यही है, खास तौर पर हमें इसी पर फोकस करना है कि सुलासी मजीद फी की प्रैक्टिस हो जाए। और अभी आपको मुश्किल नहीं है, वैसे हकीकत में ऐसा है नहीं, हकीकत में आपको मुश्किल है नहीं, मैं आपको लिख के बता देता हूँ कैसे नहीं है। यानी एक तो आपने वो गर्दान तो याद की थी ना, बीच में कुछ चीज़ें रही थी, वो आप कंप्लीट कर लेंगे, मैं आपको फिर से भेज दूंगा, अब पूरी भेज दूंगा, तो आप कंप्लीट कर लेंगे। प्रैक्टिस का जो तरीका है वो तो ये है कि हम कुरान और हदीस से हम चीज़ें निकालेंगे, और आपका वैवा भी इसी टाइप का होगा, असाइनमेंट भी इसी टाइप का होगा कि अब लफ्ज़ों को, एक तो वो पुरानी चीज़ें भी साथ हैं हमारे, वो ज़मीरें और वो वाली चीज़ें भी हैं जैसे मैंने आपको बताया था, उसके साथ हमें लफ्ज़ों से ये बताना है हर लफ्ज़ के बारे में। अब आप हर लफ्ज़ के बारे में बताने के आप अहल हो गए तकरीबन।
ہاں نہیں، اس میں فاعل مفعول بھی تو ہے نا، ظرف بھی ہے، فاعل مفعول بھی تو ہے نا، اس کے ساتھ ظرف بھی ہے وہ بھی۔ اچھا اب جب صرف صغیر آپ نے یاد کر لی تھی، اب صرف کبیر جو ہے نا، ہم نے صرف کبیر میں آپ کو یہ لکھ کے بتاتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ہے نا، ہم نے کہا تھا مثال کے طور پر دارابا، اور پھر ہم نے کیا کہا اس کے بعد دارابا، یہ آخر میں ضمیر بڑھ گئی، اور یہاں پر دارابو، اور یہاں پر پھر کیا تھا بت، اور پھر اس کے بعد دارابتا، اور پھر دربنا، اور پھر دربتا، اور پھر دربتما، پھر درب تم، اور پھر دربتی، اور پھر دربتما ہے، اور پھر دربتنا، دربتو، دربنا، صحیح۔ اچھا اب ذرا دیکھیے، ہم کوئی بھی باب بنائیں، کوئی بھی صیغہ لے کے آ جائیں، یہاں پر تو یہ تھا نا کہ باپ کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ دارابا ہے، اگر لفظ کو میں چینج کر دوں گا تو آپ کہیں گے پتہ نہیں دارابا سے ہے کہ ناسارا سے ہے، ایسا ہے نا، کیونکہ تین بابوں کے ماضی ایک جیسے ہیں نا، تو پتہ بھی نہیں چل رہا تھا یہاں پر۔ لیکن جب ہم اس سے ہٹ کے باب، وہ والے باب لائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا فوراً پتہ چلے گا کہ ہے کیا، کیوں کہ اب باب افعال جو ہے نا، اس میں ہم نے کیا بڑھایا تھا شروع کے ماضی میں افعالا، اکرما، الف بڑھتا ہے نا، الف بڑھتا ہے شروع میں، اکرما، اس کے بعد اب میں اس کو لکھتا ہوں، یہ ہے اکراما، اور پھر آپ کیا کریں گے، اکراما، یہ سیم بالکل، اور پھر یہاں پر کیا ہوگا، اکرامو، بالکل سیم، مطلب سیم کا مطلب کیا، آخر میں واو اور الف، اور پھر مؤنث میں کیا ہوگا، اکرامت، ویسے، اور پھر اکرمت، اکرامتا، کیونکہ دربا، دربنا، یہاں پر کیا ہوگا، اکرمنا، دربتا، تا، اکرمتا، دربتما، اکرمتما، دربتم، اور دربتی، تی، دربتما، دربتنا، دربتو، اور دربنا۔ دیکھیں اب میں نے تو کچھ نہیں کہا، آپ ہی لوگوں نے بتایا، آپ ہی لوگوں نے سب نے بتایا، پھر باہر نکلیں گے کہیں گے ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، سر نے کیا کہا کچھ بھی پتہ نہیں چلا، سر نے کہا کیا۔ تو یہ فارمیٹ وہی ہے جو آپ نے پچھلے سیمسٹر میں یاد کیا، آپ نے بہت کچھ کیا، اور میں تو کہتا ہوں کہ آپ نے پچھلے سیمسٹر میں اتنا یاد کیا کہ میری توقع سے بھی زیادہ، میری توقع سے زیادہ کیا، یعنی مجھے امید نہیں تھی کہ آپ اتنا کر بھی لیں گے، اور آخر میں مجھے ایسے لگا کہ کہیں باغی نہ ہو جائیں۔ جب یہاں پہ یا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ باغی ہوتے ہیں تو باہر بینر لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہو جاتے ہیں اسٹوڈنٹ باغی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم سر مہربان سے پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اب اگر میں اسی سے اگلا شروع کر دوں، الف کو ہٹا کر، وہ ہے تقبلا، ہم نے تقبلا پڑھا ہے یا کچھ اور پڑھا ہے، تقبلا، تقبلا وہ قبول ہوا، تقبل اللہ، اللہ قبول کرے، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اچھا اب تقبل، اور یہاں پر ہوگا یعنی اس نے قبول کیا، اس نے عزت کی، اس نے مارا، اب دو شخصوں نے قبول کیا تو کیا ہوگا، تقبل۔ اب یہ ماضی میں تے آ گیا تھا، اب آپ نے یہ کہا تھا نا، وہاں پر ہم نے کہا تھا آتین مضارع میں تے آتا ہے، تو یہاں ماضی میں آیا ہے، لیکن ماضی میں جب آیا ہے نا، اس کا وزن تھوڑا اس سے مختلف ہے نا، یدریبو الگ ٹائپ کا ہے نا، یہ تے تو آیا ہے لیکن بیچ میں شد بھی آیا ہے، اور یہ تے سارا رہے گا آگے، دیکھیں تقبل آئے نا ماضی، اور اس کا مضارع ہے یا تقبلو،
यतक़ब्बलु। तो ये काफ जो है ना इस बाब की अलामत, ये काफ जो है ना वो इस बाब की अलामत है। जैसे बाब इफ़ाल में अलिफ आता है ना, ये इस बाब की अलामत है, ये रहेगा। मुजारे में भी है, माजी में, अमर में भी। तक़ब्बल, अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे कि भाई वो सुलासी मुजर्रद में तो हमने पढ़ा था इधरिब, अलिफ आया था ना, उनसुर, तो यहाँ पर तो नहीं आ रहा अलिफ, तो आएगा नहीं, ये बाब और है। असल तो मुजारे से ही बनेगा ना, ये अमर कहा था ना मुजारे से बनता है, तो ये को हटाते हैं तो अमर बनता है, अलिफ लगाते हैं कभी, लेकिन यहाँ पर अलिफ भी नहीं लगाते। जो हम अलिफ अमर में लगाते थे ना, अलिफ अमर में लगाते थे ना, ये सुलासी मुजर्रद में लगाते थे, यहाँ पे नहीं लगाते। अच्छा, अब अलिफ जो है ना यहाँ पे अमर में यानी यहाँ पे नहीं लगेगा, लेकिन जहाँ पर अलिफ है ना माजी में, वहाँ पे है। इज्तनबा वहाँ पर वैसे ही है। इसमें ये है ना, इसमें अलिफ, तो इसके अमर में भी है। इसका अलिफ यहाँ पर है ना, तो इसके अमर में भी रहेगा। यहाँ पर अलिफ है ना, तो इसके अमर में भी रहेगा। इसमें है तो इसके अमर में भी रहेगा, इसके रहेगा, बाकी इनमें नहीं आएगा। जिनके अलिफ नहीं तो उनका आएगा भी नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जो फेल अमर है ना, फेल अमर, अलिफ आता है ना फेल अमर में, लेकिन यहां पर नहीं आएगा। यहां पर सिर्फ उन्हीं के आएगा जिनके शुरू में पहले से है। यहां पर जो है ना वो, यहां पर भी वही मुजारे वाली ही बात है, मुजारे वाली ही बात है यहां पर भी। यानी मैं आपको यूं बताऊं, ये है ना तक़ब्बला है ना, तक़ब्बला, अलिफ नहीं, यतक़ब्बलु, यतक़ब्बलु, यतक़ब्बल। तो हमने सिर्फ या को हटाया, या को हटाया, अलिफ की जरूरत नहीं है क्योंकि शुरू का लफ्ज साकिन ही नहीं। अब जरा ये देखिए, यदरिबु है ना, अब इसको हमने क्या कहा, इदरिब। अच्छा, जब मैंने या को हटाया था तो ये साकिन था ना, तो हमने मजबूरन अलिफ लाए, मजबूरन अलिफ लाए। अच्छा, अब यतक़ब्बलु या है ना, और इसके ऊपर ते के ऊपर जबर तो पहले से है, तो अलिफ की जरूरत ही नहीं, अलिफ की जरूरत ही नहीं, तो हम अलिफ नहीं लाए। अच्छा, नहीं आया? जी जी, देखें, जो सुलासी मुजर्रद का हमने पढ़ा था ना, हम बनाते फेल अमर को हैं फेल मुजारे से, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, जो फेल मुजारे है ना, ये है फेल मुजारे, ये जी, ये है फेल मुजारे, इसी से अमर बनता है। अच्छा, अब ये को हटाते हैं। अब जब हम ये को हटाएंगे तो होगा क्या कि लफ्ज तो साकिन है, यद रेबो, दुआत के ऊपर क्या चीज है, जो साकिन से इब्तदा कैसे कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो हमें मजबूरन क्या लगाना है, शुरू में अलिफ लगाना है। और अगर मैं बिलफर्ज वाव लगा दूं तो ये अलिफ पढ़ते ही नहीं है हम, वद्रिब, और है ना कुरान में वद्रिब बिआसा का, हम वद्रिब पढ़ते हैं ना, अलिफ नहीं पढ़ते। तो हम अलिफ क्यों लाए, पढ़ने के लिए, इब्तिदा करने के लिए। लेकिन यहां पर तो पहले से ही ते के ऊपर जबर है ना, तो जब हमने ये को हटाया तो अलिफ लाने की जरूरत पड़ी नहीं, अलिफ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, बस ते के जबर पहले भी थी, अब भी है। यतक़ब्बलु, अब मैं अगर ये कहूं कि तुम कबूल करो, यतक़ब्बलु माना वो कबूल करता है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, तक़ब्बल ऐसे है ना कुरान में ना, या अल्लाह कबूल फरमा, कबूल कर, तो अलिफ की जरूरत नहीं पड़ी हमें, बस आखिर में जज़्म आ जाएगी। बस यही होता है। और जब दूसरा लफ्ज पर पहले से जबर हो, हरकत हो, तो हमें अलिफ लगाने की जरूरत भी नहीं। अब मैं आपको ये अगला बताऊं ना, ये क्या है, इफ़ाल, और इसका मुजारे क्या है, अकरमा युकरिमु, ये है युकरिमु,
वो इज्जत करता है। और अगर मैं ये कहूं कि तुम इज्जत करो तो हम क्या करते हैं, लेकिन ये देखिए मैंने ये तो हटा दूंगा ना, ये साकिन है ना, या काफ साकिन है ना, तो हमें मजबूरन अलिफ लगाना है। तो क्या कहेंगे, अक्रिम, क्योंकि रे के ऊपर पहले से जेर थी, उसको बाकी रहने दें, ऐन कलमे को हम बाकी रहने देते हैं। अक्रिम, तुम इज्जत करो। अच्छा, अब ये है इफ्तिआल, ये है यजतानिबो। मुजारे ऐसे है ना जी, यजताने, अलिफ हटाने की, कौन से बाब की? हाँ, अलिफ यानी यहां से जाता नहीं है, अलिफ को हटाने की वजह कह रहे हैं आप। अमर में तो हम हटा देते हैं ना, ये अलामत मुजारे। हाँ हाँ, अच्छा, मुजारे की बात। हाँ, यानी मुजारे में जो है ना, अकरमा हमने पढ़ा था, ये है ना माजी, इसका इफ़ाल का, इसका माजी का, तो इसका जो अम्र है, यानी जो अक्रम, इसकी कोई वजह नहीं है। अगर हम जो अक्रम बिलफर्ज लफ्ज होता भी, हुसैन नाम है ना, हुसैन, अगर ये देखें मैं इसको लिखता हूं, अकरमा है ना माजी, इसका मुजारे होना चाहिए, अलिफ अगर बरकरार रहेगा तो क्या होना चाहिए, जो अक्रेमो, जो अक्रेमो। इसको शायद अलिफ भी आएगा, ऐसे बन जाएगा, ये वाव नहीं होगा, इसको या लगा, लेकिन या का पेश है तो वाव आएगा ना, क्योंकि या का पेश उसके साथ अलिफ के साथ हम नहीं पढ़ सकते, जो ये पढ़ने में इसमें दुश्वारी होती है पेश में। जो अक्रेमो, इसको होना यूं चाहिए, सही ना, इसको होना यूं चाहिए, जो अक्रेमो, अक्रमा। जो बाकी लफ्जों में अलिफ कहीं भी नहीं रहता, यानी उसके जो मुजारे हैं ना, मुजारे में जो है ना ये अलिफ, क्योंकि ये अभी शुरू में अभी ये है ना, ये हमने इसको अलिफ को लाया इसलिए कि ये पढ़ने के लिए ना। आप पढ़ के दिखाएं इसको, कैसे पढ़ेंगे, काफ साकिन है, या तो इसको कारामा पढ़ लें और उफलासी मुजरद का बाप पहले से, इस बाप की अलामत से असल में अलिफ आएगा। माजी में ऐसे है, मुजारे में इन सब का अलिफ गिर जाता है। हुसैन, ये सिर्फ इसकी बात नहीं है, यजतानिबू, इजतानबा, माजी है ना, और मुजारे क्या है, अलिफ गिर गया। इहमर्रा, और इसका मुजारे यहमर्रो, अलिफ इसमें भी चला गया, मुजारे में चला जाता है। इन फ़िआल में इन का सारा, इन फतारा, यन फाते, अलिफ चला गया। इस्तकबाला, यस्तक, यानी मुजारे में अलिफ सबका गया, अलिफ सब में चला जाएगा, मुजारे में सब में ही, ऐसे आपने याद किया हुआ ना, ये अलिफ तो सब में चला जाता है। अब हम बात कर रहे हैं अमर की, यानी अगर आप भूल जाएं, अगर आप वैसे भी भूल जाएं या कहीं भी आ जाए, तो ये आप उसको या बनाना चाहें तो फिर बनाएंगे कैसे, तो वो मैं आपको ये बता रहा था कि अमर में जब फेल मुजारे ही से बनता है, फेल मुजारे ही से बनता है। मैं अभी ये इन सब के मुजारे लिख दूं आपको, कोई चीज़ नहीं है मेरे ख्याल में, चले जगह है हमारे पास। ये देखें, ये है युक्रेमो, और उसके बाद सबसे पहले यतकब्बलु, यतकब्बलु, और इजतानबा, और उसके बाद है युकाबिलु। अच्छा, और उसके बाद है यहमर्रो और इस्तकबला। जी, अभी जरा इन्हीं लफ्जों पे आ जाएं, आप इन्हीं लफ्जों पे आ जाएं, इसी पे ही बात आपको समझ में आ जाएगी। यहां से देखिए आप, ये माजी है ना, ये मुजारे है, ये मुजारे है, माजी नहीं। यस्तकबिलो, ये मुजारे है ना,
یہ مضارع ہے، نہیں بھی اسی سے بنتا ہے. ہم شروع میں کیا کرتے ہیں؟ لا لگاتے ہیں بس، اور آخر میں جزم آ جاتی ہے. یستقبل وہ استقبال کرتا ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ وہ استقبال نہ کرے، اس کو نہیں کرنے چاہیے، تو لا یستقبل. تستقبلو تم استقبال کرتے ہو، تو لا لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ تم استقبال مت کرو. یکرمو وہ احترام کرتا ہے، اور وہ احترام نہ کرے، لا یکرم. اور اگر میم کے اوپر پیش لگا دیں گے تو نہیں ہوتا ہے. لا یکرمو وہ احترام نہیں کرتا. یاد ہے نا ایسے؟ یعنی نہیں لا یکرمو لا یکرم، دونوں میں فرق یہ ہے کہ نہیں جو ہے نا وہ روکنے کا آرڈر ہوتا ہے، لیکن آخر میں جزم ہوگا. فرق یہ ہوگا لا یکرم وہ احترام نہ کرے، اس کو نہیں کرنا چاہیے. لا یکرم وہ احترام نہیں کرتا. خبر ہے؟ ہاں یعنی پیش سے ہی فرق ہوگا، نہیں کہ آخر میں پیش آتا ہے. ہاں اچھا، اسی مضارع ہی سے ہم کیا بناتے ہیں؟ امر بھی بناتے ہیں. اسی سے ہم امر بھی بناتے ہیں، اسی سے ہی امر بھی اسی سے بناتے ہیں. امر کیسے بناتے ہیں؟ یا جب آپ پریشان ہو جائیں تو آپ اس کے شروع میں یعنی سمجھنے کے لیے کہ ہم یہ ہٹا دیتے ہیں سب میں. ہاں کیونکہ یہ علامت مضارع ہے نا، تو ہٹا دیں اس کو. ہم نے ہٹا دیا، ہم نے یہ ہٹا دیا، یہاں پہ بھی یہ ہٹا دیا، اور یہاں پہ بھی ہم نے یہ ہٹا دیا. دیکھ رہے نا؟ اب ہم نے یہ ہٹا دیا، یہ ہا باقی ہے. جب ہم نے یا ہٹایا تو اس میں سین پر کیا تھا؟ سین ہے نا، جزم ہے نا، جزم ہے. یستقبلو تو کیا کریں گے ہم؟ الف لائیں، کیونکہ جزم سے ہم شروع نہیں کر سکتے نا بات. تو یہ ہو گیا استقبل. زیر زبر برقرار ہے اپنی جگہ پر سب کا. استقبل تم استقبال کرو. یکرمو اچھا یہ کو ہٹایا تو کاف کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے نا. تو کیا امر جب بنائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ اکرم. الف بڑھائیں گے، مجبوراً بڑھا رہے ہیں ہم. اچھا یتقبلو، یہاں پر تے کے اوپر پہلے سے زبر موجود ہے نا، تو ہم نہیں بڑھائیں گے الف نہیں بڑھائیں گے. تو بالکل ویسے ہی، اور باقی صورت برقرار رہے گی. بس امر کے آخر میں جزم آتا ہے. تقبل، ابھی جو ہم نے کہا نا ربنا تقبل، الف بڑھاتے ہیں. ہاں وہ ثلاثی مجرد کی بات ہے، وہ ثلاثی مجرد کی بات ہے. لیکن عین کلمہ وہاں پہ بھی چینج نہیں ہوتا. ہاں لیکن الف کی زیر زبر جو ہے نا، ہاں الف کی زیر زبر اس میں وہ نہیں ہے. یعنی جو ثلاثی مجرد کا جو طریقہ تھا نا، ہم نے اس میں کیا کیا تھا کہ الف پر زیر دینی ہے یا زبر دینا ہے، پیش وہاں پر نہیں تھا. لام کلمے کے حساب سے تھا. ہاں یہاں پر جو ہے نا یستقبلو، اچھا استقبل، اجتنب، احمر، احمر، سب جگہ زیر ہے یہاں پر. ہاں بس اکرم پر زبر آیا. اس کو اگر ہم کر دیں نا اکرم، اکرم، اب ویسے تو کوئی لفظ نہیں ہے. ہاں اب اس کی جو وجہ ہے اکرم، یعنی اب مجھے اس کی وجہ نہیں معلوم کہ یہ کیوں آیا ایسے، یعنی اس کے اوپر زبر کیوں دیا ہم نے تو کیونکہ وہ سارا ہے تو ایسے، اس کی وجہ خیر میں دیکھ لوں گا کیا ہے. ابھی تک میں نے کبھی غور بھی نہیں کیا کہ اس پہ ہم نے زبر کیوں دے رہے ہیں. ہاں اجتنب ہی ہوگا. نہیں اصل میں تو یجتنب وہ ہے نا، مضارع سے بنا رہے ہیں نا. ہاں مضارع سے بنا رہے ہیں نا. یجتنب اجتنب، ہم نے یعنی باقی حرکتیں چینج نہیں کی. ذرا دیکھیے آپ، یجتنب پیش جزم سے چینج ہو گیا اور الف آیا ہے. اجتنب
इज्तनिब अलिफ रखा है, बाकी सब में अलिफ की ज़ेर है। अच्छा, अब है ये है युकाबिलो, युकाबिलो। हमने अमर कैसे बनाया? काबिल, क्योंकि काफ के ऊपर पहले से जबर मौजूद है। इहमर्रा, इहमर्रा, यह मर्रो। अब हे साकिन है तो हमें मजबूरन अलिफ लाने पड़े। तो अमर में अगर मैं ये कहूँ तुम सुर्ख हो जाओ, और आपने याद भी किया हुआ है, तो क्या करते हैं? इहमर्रा या इहमरिर, उसके दो तीन चीजें हैं। ये बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये बात समझ में आ रही है ना? फिर अमर का आप कैसे उसको बनाते, भूल भी जाएं तो आपको वैसे ही तरीका है उसका, यानी मुजारे से ही बनता है। हम ऐसे लिखेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ में आएगी चीजें, और उसकी सबसे बड़ी बात तो प्रैक्टिस ही की होगी। लेकिन आप इन गर्दानों को शुरू कर दें और मुझे भी बता दें कि हम कब सुनाने के लिए तैयार हो जाएंगे, पूरी गर्दाने। हाँ, पहले सिर्फ सगीर सुन लूंगा और फिर कबीर भी। अच्छा, कबीर का जैसे मैंने आपको बताया है ना भाई, फॉर्मेट तो वही है ना। मिसाल के तौर पर आपने कहा था यदरिबू यदरिबानी, अब हम कहेंगे यजतानिबू यजतानिबानी, यदरिबू ना यजतानिबू ना। ऐसे है ना, तदरिबू तजतानिबू। इसमें मुश्किल क्या है? बस वो जबान चढ़ेगी और आ जाएगा। आप हैं मेरे साथ या नहीं हैं? है ना, या कहीं और पहुंचे हुए हैं? हाँ, एह मर जो है ना, अब इसके तीन हैं। एक तो यह है कि एह मर्रा, एह मर्रे, एह मरिर। अमर के तीन हैं, तीन वर्जन है, उसमें लिखे होते हैं। अब मैं जब वरदान दूंगा उसमें लिखा होगा, यानी आप ये तीनों पढ़ सकते हैं। हाँ, जज़म इसलिए आ नहीं सकता, उसमें दो रा है ना, अगर रा को खोल दे तो फिर आ जाएगा। हाँ, एह मर्रा, बस इसी में, और कहीं नहीं। सिर्फ इसमें नहीं, देखिए जहां पे तकरार होगा ना, तशदीद होगी, उसमें ऐसे होगा। तशदीद वाले में, तशदीद मतलब वो जो दो लफ्ज एक बन जाए ना, वो। हाँ, अच्छा, मेरे ख्याल में हमारे 10 मिनट तक, 10 है ना, 10:10 है, ऐसे है। चले, टाइम पूरा हो गया। हमारी इसी पे क्लास रहेगी। आपको मैं चाह रहा हूँ समझा दूँ बात। अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप फिर गौर कीजिएगा जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ताकि हम फिर अगले काम की तरफ चल सकें और आपको बात समझ में आ जाए, लफ्ज़ों की पहचान हो जाए सर्फी तौर पर। तो आप ज़रा सोचिएगा कि कब आप सुनाने के लिए कब तक तैयार होंगे सुनाने के लिए, और पहले दिन से याद करना। नहीं, पानी का आप तो ये याद कर चुके हैं ना, तो सुलासी देखें जी कैसे। जो सर्फ सगीर है ना, सर्फ सगीर तो आप याद कर चुके, और ये है ही ज़र्फ तक, इसके बाद है भी नहीं, इसके बाद है भी नहीं। यानी कोई आला बनाना होता है ना, तो हमारे पास तरीका और है उसका, बाकी इसमें तफजील के लिए तरीके और हैं। इसमें है ही, इसमें ज़र्फ तक बस। हाँ, मैं आपको भेज दूंगा। अच्छा, जब ये याद हो जाएगा, हाँ ज़र्फ मैं अभी जब दूंगा तो उसमें होगा। तो मैंने ये चाहा था कि आपको जो है ना अगले सेमेस्टर की दे दूं, और कुछ ना कुछ तो आप आगे याद कर लें। और जो हमारे स्टूडेंट्स आपकी क्लास में फुल हाजिरी वाले स्टूडेंट्स तो बहुत कम थे, कुछ था कि नहीं था? कौन था, क्या नाम है? उजाला, बस आप ही थी उजाला, माशाल्लाह। और आप मानूर, आप भी हैं। आपको लिस्ट जो भेजी थी उसमें है, और किस किस के नाम जो लिस्ट भेजी थी मैंने? दो हैं। नहीं, शॉर्ट अटेंडेंस वाली बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, रेगुलर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। देख, एक वाली भी कट गई। जैसे एक वाली कट इसलिए गई कि हमारी क्लासेस जब ऑनलाइन चली जाती है ना,
तो ऑलरेडी वैसे कम हो जाते हैं ना, तो इसलिए वो एक वाली को भी 100% हाजिरी वालों को मैं नाम आपको रिमशा याद दिलाइएगा, आपको लिस्ट भेज दूंगा। और पोजीशन होल्डर की लिस्ट आ चुकी है, शायद परसों होगा, मजीद आपको कंफर्म कर दूंगा। हमारा नीचे इवेंट होगा, चेयरमैन साहब होंगे और इंशाल्लाह वहाँ पर आपको लेटर सर्टिफिकेट देंगे, सही ना? आपको मैं मजीद आपको भेजूंगा। आप हाजिरी, अच्छा रिमशा लिए आपने सर्टिफिकेट, शीट ले ली आपने? आप ही है ना सीआर रिमशा? अच्छा, तो फिर ये ऐसे करें, इसी के ऊपर आप तारीख लिख लें आज की, आज 2-3 छोड़कर तारीख लिख लें और नाम कॉल करें और लें।